بلوچستان کے بولان ٹنل میں جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو یرغمال بنانے والے دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز میں مقابلہ 16 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں رات گئے تک کلیئرنس آپریشن۔ 104 مسافروں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ 17 زخمی مسافر قریبی اسپتال منتقل۔ بازیاب مسافروں کو مچھ ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ یرغمال بنائے گئے مسافروں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ دہشت گرد افغانستان میں ماسٹر مائنڈ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کا دو ٹوک پیغام۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر انفارمیشن ڈیسک قائم کر دیا گیا۔ ٹرین کی آخری منزل پشاور ریلوے اسٹیشن پر بھی ایمرجنسی کاؤنٹر قائم۔ صدر آصف علی زرداری نے جعفر ایکسپریس کے 79 مسافروں پر دہشت گردوں کا حملہ غیر انسانی قرار دے دیا۔ مسافروں کو ریسکیو کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کی مذمت۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ترقی کا سفر ناممکن قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دہشت گردوں کا اقدام ریاست پر حملہ قرار دے دیا۔ قاتلوں کو چن چن کر ماریں گے۔ پوری قوم بہادر فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سرفراز بھگٹی کا امن دشمنوں کو بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یرغمال مسافروں کی خیریت کے لیے دعا گو۔ دہشت گردوں کو انسانیت سے عاری قرار دے دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا بہت اچھا فیصلہ ہم نے آج کیا ہے، اور ہم نے اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے ایک جدید ترین یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا نام ہے دانش یونیورسٹی۔ وزیر اعظم کا دانش اسکولوں کے بعد دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے پاکستان کو واپس کیے گئے 190 ملین پاؤنڈز یونیورسٹی پر خرچ کیے جائیں گے۔ شہباز شریف رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے وفاقی حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس کے شکر گزار۔ بلاول بھٹو نے حکومت سے نئی نہریں نکالنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پانی کا مسئلہ SIFC کا مسئلہ نہیں، یک طرفہ فیصلوں سے حکومت کے بارے میں سوال اٹھ رہے ہیں۔ اسمبلی میں تیسری بڑی قوت ہیں، حکومت پر اگر بہت اعتماد ہوتا تو وزیر بنتے۔ خواہش ہے اتحادی حکومت چلتی رہے۔ JLA چیئرمین کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ PTI صرف اپنے بانی کی رہائی کی بات کر رہی ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں دے رہی کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سینٹ میں شبلی فراز کی جانب سے قرارداد پیش کرنے کی کوشش، پریزائیڈنگ افسر عرفان صدیقی نے روک دیا۔ قائد حزب اختلاف اور وزیر قانون میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ۔ PTI رہنما نے خیبر پختونخوا سے نمائندگی نہ ہونے پر ایوان نامکمل قرار دے دیا۔ اسمبلی کے اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ اجلاس بلانا تھا، وہ اجلاس نہ بلایا گیا۔ دانستہ وہ حلف نہ دیے گئے، دانستہ سینٹ کا انتخاب نہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں دانستہ سینٹ انتخابات نہیں کرائے گئے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے اپنے نمائندوں کا حلف نہیں لیا۔ اسمبلی اجلاس وقت پر نہیں بلایا۔ ہائی کورٹ نے اجلاس بلانے کا حکم دیا تو بھی حکم عدولی کی گئی۔ KP کے سینٹ الیکشن میں تاخیر وفاق کی طرف سے نہیں، دوسری طرف سے ہوئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سینٹ میں اپوزیشن پر برس پڑے۔ عوام کو معیشت میں بہتری کا فائدہ ملنا شروع ہو گیا۔ معیشت ڈیفالٹ کے دہانے سے بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ترکی اور ازبکستان کے صدور نے بھی پاکستان کی معیشت کی تعریف کی۔ عطا تارڑ کا اظہار خیال۔ $7 ارب قرض کی اگلی قسط کے لیے IMF سے پالیسی سطح کے مذاکرات۔ پاکستانی حکام نے PIA کی نجکاری جون تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ 3 بجلی کمپنیوں کی نجکاری کا پلان بھی پیش کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اگلے 2 روز میں ٹیکسوں اور پاور سیکٹر کی امور پر
हतमी बातचीत होगी। पाकिस्तान पोस्ट में खिलाफ ज़ाब्ता 381 भर्तियों का इंकिशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1 माह में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए ज़ेली कमेटी भी तश्कील दे दी गई। सुपर टैक्स एक मरतबा के लिए खास मकसद के तहत लगाया गया था। क्या ये टैक्स अब कयामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर लेवी टैक्स केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। हुकूमत से पूछा जाए, सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ? कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। सुपर टैक्स ऑपरेशन मुतासिरीन की बहाली के लिए था। ऑपरेशन के दौरान किन इलाकों से कितने लोग बेघर हुए? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। पहले मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान का होता था। आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। ख्वाजा हारिस के दलाइल। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों की जल्द समाअत की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुत्तफिका कानून है कि ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल के बजाय ATC कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में होगी। ATC अदालत के जज अमजद अली केस सुनेंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजारों को लापता अफराद कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत का भी हुक्म। इस्लामाबाद में शहरी की मुबैना गैर कानूनी हिरासत केस में DSP साजिद चीमा हाई कोर्ट में पेश। क्या पुलिस ऑफिसर्स गिरफ्तार हो चुके? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। शनाख्त के लिए दरखास्त गुजार को बुलाया था, वो नहीं आए। पुलिस अफसर का मौक़िफ़। CCTV फुटेज मौजूद है, शनाख्त परेड की जरूरत ही नहीं। केस वापसी से मुताल्लिक SSP ने 5 लाख की पेशकश की, रिकॉर्डिंग मौजूद है। वकील शेर अफजल मरवत के दलाइल। अदालत ने आइंदा समाअत पर IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की मजीद तौसी कर दी। मुलजिम के वकील की अबूरी चालान जमा कराने की दरखास्त पर नोटिस जारी। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान और बानी के वकला में तल्ख कलामी। बानी से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। साबिक वजीर आजम के लिए अब तक क्या रिलीफ हासिल किया गया? बानी की बहन का वकला से सवाल। जेलें काटी, बदतमीजी ना करें। वकील नईम पंजोता का अलीमा खान को जवाब। जेल में बानी से शिकायत भी लगा दी। पाकिस्तानी सिफारतकार को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। सिफारतकार निजी दौरे पर गए थे, मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का रद्द अमल। अमेरिका में तैनाती के दौरान सिफारतकार मुबैना तौर पर इंतजामी बदउनवानी में मुलविस रहे, जिस पर उन्हें लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर रोका गया। ज़राए का दावा। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए खतरा करार। कलदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी बन गई। BLA और मजीद ब्रिगेड पाक चीन इक्तिसादी ताउन को सबोताश करने की कोशिश कर रही है। ठोस शवाहिद हैं। काबुल हुकाम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। तरबेला डैम में पानी का जखीरा तशवीशनाक हद तक कम हो गया। पानी की सतह 1405 फुट पर आ गई। डेड लेवल 1402 फीट है। बिजली के 17 पैदावारी यूनिट्स में से 9 बंद हो गए। मुल्क में बिजली के बहरान का इम्कान पैदा हो गया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ नवाब शाह में बार काउंसिल के वकला का एहतजाज। सेशन कोर्ट से शिराज चौक तक रैली। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के तलबा का मुजाहरा। कोटरी में भी शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली।
राजनपुर में सोलर प्लेटों के इस्तेमाल से बंजर इलाके आबाद होने लगे। पचात का बयाबान वाटर सप्लाई स्कीमों से हरे भरे नखलिस्तान में तब्दील। लाखों एकड़ इराजी पर सोलर सिस्टम के जरिए सारा साल पानी दस्तयाब। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से कबल तनख्वाह देने का ऐलान। 21 मार्च को पेंशन और तनख्वाहें जारी करने की हिदायत। विंदर के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रक से टकरा गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। बहावलनगर में बस उलटने से खवातीन और बच्चों समेत 21 मुसाफिर जख्मी हो गए। कराची में कुत्तों के साथ बिल्लियों के हमले भी बढ़ गए। शहर के सरकारी अस्पतालों में बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीनेटेड बिल्लियों से भी रेबीज होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। इसराइल के गजा और मगरबी किनारे पर हमले। 24 घंटों के दौरान मजीद 9 फलस्तीनी शहीद, 14 जख्मी हो गए। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 32 लाशें निकाल ली गईं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जमीन तंग। अजान देने पर इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मस्जिद के लाउड स्पीकर को भी जब्त कर लिया गया। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में शिद्दत पसंदों का होटल पर हमला। खुदकुश हमलावर ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी होटल के दाखिली दरवाजे से टकरा दी। 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। सऊदी अरब के शहर जद्दा में यूक्रेनी और अमरीकी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेनी हुकाम ने मुज़ाकरात को तामीरी करार दे दिया। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हलाकतों की तादाद 3 हो गई। फिलिपाइन के साबिक सदर को इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हांगकांग से मैनिला एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। आलमी फौजदारी अदालत ने वारंट जारी कर रखे थे। उन पर 2016 से 2022 के दौरान मनशियात के मुल्जिमान के मावराए अदालत कत्ल का इल्जाम है। होम ग्राउंड पर सीरीज हारी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी मात खाई। कीवीज से शिकस्तों का बदला लेने ग्रीन शर्ट्स का नया दस्ता आज न्यूजीलैंड रवाना होगा। 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम की लाहौर में सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग। नेशनल T20 कप 14 मार्च से शुरू होगा। 16 रीजन्स की 18 टीमें इवेंट में हिस्सा लेंगी। फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान मैचेस की मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी से मुताल्लिक उम्मीद की किरण रोशन हो गई। जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम ने 21 साल से वीरान नेशनल हॉकी स्टेडियम को आबाद कर दिया। 4 मैचेस की सीरीज में जर्मन टीम को 3-0 की बढ़तरी। आखिरी दोस्ताना मैच इस्लामाबाद में 13 मार्च को शेड्यूल। हक की आवाज उठाई, अवाम के दिलों में जगह बनाई। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया छोड़े 32 साल बीत गए। कलाम आज भी ज़बान ज़दे आम।